All right, guys, this is Farhan. Let's start May, June 2022, variance 23. Okay, let's see what we have in this paper. Seems like the first part related to ionization energy, and examiner is asking the definition of first ionization energy, and that's a very simple 2 marks ka part. So, amount of energy required to remove 1 mole of an electron from 1 mole of neutral gaseous atom to give monopositive ion. Monopositive means carries +1 charge. Okay. Successive ionization energies for element A are shown. To deduce the group of periodic table A belongs to, explain your answer. Okay, सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप मुझे सिक्स्थ और 7 के दरमियान लग रहा है, क्योंकि 13,300 से 71,000 चला गया, राइट? तो सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट एनर्जी गैप है वो इन दोनों के दरमियान है, और वो है तकरीबन 71,000 माइनस 13,300, ये है तकरीबन 57,700. ओके, दैट इज द बिगेस्ट एनर्जी गैप दैट शोज कि इस जगह पर शेल चेंज हो गया, राइट? शेल चेंजेस हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हमने ये कहा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वैलेंस शेल से रिमूव होते हैं. इसका मतलब these 6 electrons are removed from the valence shell, which means 6 electrons are present in the valence shell, and therefore element belongs to group 16 of the periodic table. Okay, so group 16 is the right answer. Okay, और explain क्या करेंगे हम? Biggest energy gap exists between 6th and 7th ionization energy. Hence, 6 electrons are removed from valence shell. Okay. Across period 3, there is a general trend for the first ionization energy increases due to the increase in attraction between nucleus and the outer electron. Explain why the first ionization energy of sulfur is less than that the first ionization energy of phosphorus. तो हम सबसे पहले तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन है, देन हमारे पास 3s2 है, एंड देन हमारे पास 3p4 है. ओके, अच्छा जी. फिर हमारे पास है जनाब फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है. इट हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह हमने नियॉन का सिंबल रखा. उसके बाद 3s2 है हमारे पास, एंड देन 3p3 है हमारे पास. ओके, आप सब जानते हैं कि सल्फर के 3p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा, और फॉस्फोरस की भी 3p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा. एंड ऑब्वियसली सल्फर के 3p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजियर होगा एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज सल्फर कंटेन वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so it will experience a spin-spin repulsion, which is also called inter-electronic repulsion, and this repulsion is not possible in phosphorus. So less energy is needed to remove the electron from sulfur 3p orbital of sulfur. Okay,
I hope it makes sense to you. So हम यहाँ लिख देते हैं कि less energy is needed from the electron removal from 3p orbital of sulfur as it contain one paired electron in 3p orbital, so it experiences spin repulsion. Okay, spin repulsion. In aluminum 2+ ion, the nuclear attraction for the outer electron is stronger than in an atom of sodium. Compare the electronic structure of Al2+ and sodium and explain why the third ionization energy of aluminum is greater than the first ionization energy of sodium. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. That means it has 11 electron. So configuration is like this, right? Aluminum has an atomic number of 13 and it has 2+ charge. इसका मतलब मुझे इसमें भी 11 electrons हैं. इसका मतलब इन 11 electrons की भी configuration sodium atom जैसी होगी. Okay? इसका मतलब aluminum 2+ and sodium atom both are isoelectronic because they have same number of electrons. Okay? Now the reason is why the third ionization energy of aluminum is greater than that of this. Okay, the issue is that this ion, aluminum 2+, has more protons than electrons, which means this ion exhibit strong proton to electron attraction, meaning it has a greater nuclear charge and therefore more energy is needed for ionization. Okay, so इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज से लिख देते हैं. Both sodium atom and aluminum 2+ ion are isoelectronic. और हमने क्लास में बताया आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक. ओके, इसकी भी 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, इसकी भी 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होगा बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन. ओके, electron removed from 3s orbital both from sodium and aluminum 2+. Since aluminum ion has strong proton to electron attraction, which is also called greater nuclear charge. So since aluminum 2 ions has a strong proton to electron attraction, then sodium
hence it is difficult to remove electron, thus require more amount of energy. Thus required more amount of energy. Okay. ओके मैंने पहले भी कहा था आपको कि इसमें 13 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा है. ओके an isotope of copper. Oh, is there anything left? No. Okay, an isotope of copper has a relative isotopic mass of 65. Complete table. An atom of copper 65. कॉपर का 65 एटॉमिक मास है. एटॉमिक नंबर है बेटा इसका 29. नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन नंबर है इसका 65, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास भी कहते हैं हम. 65 और 29 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, विच इज 36. ओके, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हमसे कह रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कॉपर की लिखते हैं, हमने आप क्लास में करवाया है. कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि पहले आप 3d लिखेंगे फिर 4s, फिर पहले 4s होगा और फिर 3d, तो 4s में 1 और 3d में 10. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. हमने क्लास में एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है. The element copper has a relative atomic mass of 63.5. Calculate how many atoms are present in 1.05 gram of copper. Oh, that's a simple part. सबसे पहले moles of copper निकालेंगे. हमारे पास mass है 1.05. हम उसको divide कर देंगे 63.5 से, तो हमारे पास moles of copper आएंगे 1.05 divided by 63.5. So it's going to be 0.0165 moles. Okay. Okay, हमारे पास है 1 mole is always equals to 6.02 into 10 to the power 23 atoms. तो अगर हमारे पास 0.0165 moles हैं तो बताइए एटम्स कितने होंगे. into 6.02 exponent 23 is going to be 9.95 into 10 to the power 21. तो हम यहाँ लिखेंगे 9.95 into 10 to the power 21. Okay, all right. Copper has a melting point of 1085 degrees Celsius and high electrical conductivity. Explain these properties of copper by referring to its structure and bonding. Copper is a metal and it contains C of delocalized electrons. Therefore, it has a good electrical conductivity. Okay, तो हम यहाँ लिखेंगे due to the presence of C of delocalized electrons, copper has high electrical conductivity. Okay, हम सब जानते हैं कि कॉपर एक मेटल है तो ऑब्वियसली उसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन.
Okay, which is why it has a melting point. So copper has a strong metallic bond. And why it has a strong metallic bond? Because it has strong electrostatic attraction between positive ion and sea of electron. Thus, require more energy to break strong metallic bond. Okay, I think that's the end of question number 1. Let's move on to the next question. That is question number 2, related to period 3 elements and the compounds, trends in their physical properties. Sketch a graph to show the melting point of the first 5 elements in period 3. That's what we have done in the class. आप जानते हैं कि silicon has the highest melting point. Okay, सोडियम, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है. ओके, आप जानते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम हैज ऑलमोस्ट सेम melting point. एंड देन फिर उसके बाद ये है, और आप जानते हैं कि फॉस्फोरस कम होगा क्योंकि ये P4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ओके, ऑलराइट, बहुत कम फर्क होता है इन दोनों में. ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया है, मैंने स्लाइटली रेज दिखाया यहाँ पर. ओके, complete table 2.1 with information for sodium chloride and phosphorus 5 chloride. Sodium chloride की state है solid at room temperature and pressure, name of which changes occurs on the addition of water. तो यार आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होता है, इसका मतलब आप डिस सोल्यूशन कह सकते हो, डिसॉल्व भी लिख सकते हो. Final pH of solution should be neutral, that is CN, that is 7. Okay, phosphorus 5 chloride, अगर मैं PCl5, इसका फॉर्मूला क्या होता है PCl5, और अगर मैं PCl5 वैसे तो सॉलिड होता है at RTP, और अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन देता है फॉस्फोरिक एसिड का और HCl का. तो इसका मतलब इसकी जो pH है वो बिलो 7 होगी. ओके, और जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे यहाँ से, तो बिलो, अच्छा वो न्यूट्रल लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, वो सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर. 7 है तो 7 लिखिए, और यहाँ रेंज मैंने क्या दी हुई थी आपको 2 to 4 दी हुई थी क्लास में, तो जो रेंज दी हुई है वो लिखिए यहाँ पर 2 to 4. ओके, name of change which occurs on addition of water, hydrolysis, because of the presence of vacant d orbital. Tennessine TS is an unstable man-made element. It is found below astatine in group 17. The chemical properties of TS and its compounds have only been predictive. Suggest the equation for the reaction of this with bromine. Assume that TS follows the same trend as the other element in group 17.
Explain your answer. Obviously guys, हम सब जानते हैं कि ये more reactive है and obviously ये less reactive होगा तो ये इसको displace कर देगा, right? तो equation कुछ इस तरह से बनेगी, NaTs plus Br2 arrow 2 NaBr plus Ts2, तो यहाँ पर 2 लगाइए, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ओके, और वो आपसे स्टेट सिंबल्स नहीं पूछा इसलिए स्टेट सिंबल्स नहीं ले रहे। आप बताइए एक्सप्लेनेशन में कि ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव। ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव and Ts minus is a strong reducing agent because down the group reducing power of halides increases. So Ts negative is a strong reducing agent. Hence displacement reaction takes place. ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। Some scientists predict that Ts has properties typical of metals like copper. Complete table 2.2 with the predicted melting point of tinancine, the lattice energy of solid chlorine, bromine and tinancine. Okay, क्लोरीन तो बेटा आपको पता है ना, गैस होता है ऑब्वियसली, और लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्लोरीन सिंपल मॉलिक्यूलर। ओके, ब्रोमीन भी सिंपल मॉलिक्यूलर। ओके, the predicted melting point of this. जी, आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इससे ज्यादा होगा, और एक प्रिडिक्ट करना है बेसिकली हमें ना, सजेस्ट करनी है हमें एक वैल्यू, तो कोई वो तो नहीं है फिक्स ट्रेंड। लेट मी चेक कि हमारे पास कुछ और तो नहीं दिया हुआ, नहीं कुछ और भी नहीं दिया हुआ हमें। सो हम एक वैल्यू सजेस्ट कर सकते हैं, हम एक डिटरमिन कर सकते हैं, ये कह सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, अच्छा, अब प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम ये है कि जो टिनेंसिन है उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, जैसे कॉपर, तो जाहिर सी बात है अगर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो टिनेंसी का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, इसलिए मैंने 200 लिख दिया, या अबव 200 भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऑलराइट। और दूसरी बात ये कि वो मेटल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जाइंट मेटालिक। अगर कॉपर जाइंट मेटालिक है तो टीएस भी जाइंट मेटालिक होगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। G belongs to a group of compound called ethers. Okay, ये मैंने करवाया आपको ईथर, बल्कि मैंने दो तरह से ईथर करवाए। एक आपको करवाया मैंने ROR, ठीक है, इसको नाम दिया था हमने सिमेट्रिकल ईथर, अगर आपको याद हो, क्योंकि इसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है। और एक हमने नाम दिया था ROR-, यानी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो हमने इसको नाम दिया था अनसिमेट्रिकल ईथर। ऑलराइट, सो एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर आप नोट करें ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये ROR को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सिमेट्रिकल ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट first part of the question. When GC4H10O is heated, thermal decomposition occurs. ये thermal decomposition आ गई जनाब, डेल्टा H माइनस, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
डेल्टा एच माइनस का मतलब रिएक्शन क्या है मेरे पास, एक्सोथर्मिक. ओके. The atoms in a molecule of CO are held together by triple covalent bond. That's the important statement. That's what we have discussed in the class. One of these bond is a coordinate covalent bond. और ये coordinate covalent bond हमेशा ऑक्सीजन फॉर्म करता है. Always form by oxygen. ठीक है. ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करता है कार्बन के 2p z ऑर्बिटल को और इस तरह से वो डेटिव बॉन्ड बनाता है. और ये पूरा मैकेनिज्म हमने क्लास में भी शेयर किया. ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो द अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स in carbon monoxide molecule. Use dot to represent oxygen atom, use cross to represent carbon atoms. Okay, so ये मैंने कार्बन बनाया, ये मैंने ऑक्सीजन बनाया. ओके, सो ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है. कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. तो 1 2 3 4. और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दिस इज कार्बन, नहीं, दिस इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4. यानी इसकी वजह से डेटिव बॉन्ड बन रहा है. 4 हो गए, 5 and this one is 6. Okay, वो कह रहे हैं calculate the bond energy of C triple bond O using bond energy values in the table and the enthalpy change for the thermal decomposition of G. Show your working. G जनाब G. ये यहां से मैं पिक कर लेता हूं पहले तो, ताकि मुझे आसानी रहे सॉल्व करने में. ठीक है. ओके, चलें जनाब. ओके, सबसे पहले तो आपको कहा था मैंने पढ़ाते हुए कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिलता है तो आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करें. तो देखें, इसका स्ट्रक्चर एग्जामिनर ने मुझे ओपन करके यहाँ दिया हुआ है जी का. ठीक है. उसके बाद वो मुझसे कह रहे हैं C2H6. तो यार C2H6 का स्ट्रक्चर ओपन करके मैं आपको दे देता हूँ. C2H6 ये होता है, डिस्प्लेड स्ट्रक्चर ये होगा. व्हाई वी नीड द डिस्प्लेड स्ट्रक्चर? बिकॉज हमसे कोई कोवलेंट बॉन्ड मिस ना हो, क्योंकि अगर एक कोवलेंट बॉन्ड भी मिस हो गया तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड. उसका स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है, C ट्रिपल बॉन्ड O. ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड O. ऑलराइट. और उसके बाद है मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चर ये होगा. Now I need to use these values. मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इनको भी उठा लेता हूँ ताकि मुझे वहां पर कैलकुलेशन और बॉन्ड्स को कैलकुलेट करते हुए आसानी हो. टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो यहाँ रखते हैं इसको ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, चलें, लेट्स स्टार्ट. हमारा फॉर्मूला था एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन equals to summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of product. अच्छा, डेल्टा एच आर की वैल्यू एग्जामिनर ने दी हुई है मुझे. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी -7.00 इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट में भाई मेरे पास ये है, तो इसके कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. ओ माय गुडनेस. वेट. अच्छा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है. तो ये हो जाएगा 410 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 कोवलेंट बॉन्ड्स है मेरे पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. और आप नोट करें, कार्बन ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड है और ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है. तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो 360 और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से. ओके, नोट करो, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, राइट. तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना होता है? 350. उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. माइनस ये मेरा रिएक्टेंट हो गया.
अब मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मेरे पास सबसे पहले क्या है, इथेन। इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो CH का एक बॉन्ड होता है 410, क्योंकि मेरे पास 6 है तो मैं इंटू 6 करूंगा। आप नोट करो इसमें कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन भी है, उसकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू है हमारे पास 350। ये हमने इथेन को कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को X ले लेते हैं, प्लस CH4। CH4 में 410 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मेरा प्रोडक्ट हो, सही है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहां से मुझे X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो मेरे पास X की वैल्यू यहां से आ जाएगी, मेरे पास यहां से X की वैल्यू आ रही है बेटा फाइनल, आई थिंक सो, प्लस 1077 किलो जूल्स पर मोल। लेट मी चेक वन मोर टाइम, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं एक मतलब, ताकि कोई एरर ना हो उनसे। 410 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 350 मल्टीप्लाई बाय 2 इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा मेरे पास 5520 माइनस, ये हो जाएगा 410 टू 6 प्लस 350 प्लस 410 टाइम्स 4। वेट, ये हो गया, ये हो गया, नो 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 नो, हाँ 4 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से करेंगे, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 4450, तो 5520 माइनस आंसर इज गोइंग टू बी 11070 किलो जूल पर मोल। तो ये ठीक है बेटा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्लस 1077, okay. Part third, when GC4H10O is heated in a sealed container and equilibrium mixture is produced. Complete the expression for the equilibrium constant Kc for this reaction, state the units, okay. तो Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपके पास C2H6 है, प्रोडक्ट आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्रोडक्ट आपके पास CH4 है, ठीक है, होल्ड ऑन, ठीक है। ये मैंने -7 एक मिनट, मैं लिखना भूल गया था, मैंने कहा मुझे याद आया कि मैंने कोई चीज मिस की हुई है मेरे ख्याल से। याद रखिएगा कि मैंने ये लिखा हुआ है, और मैं इन सब को माय गुडनेस, और मैंने ये भी लिखा हुआ है +x, ठीक है। यहाँ से फिर x की वैल्यू ये आई, ओके। मैंने डायरेक्ट कर दिया था कंफर्मेशन के लिए। Anyhow, let's move on to this concentration of product. Product हमारे पास C4H10O। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। जब यूनिट मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा मोल क्यूब डीएम -9 ओवर, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। ये यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो आपके पास फाइनल यूनिट क्या होगी, मोल स्क्वायर डीएम -6। तो मैं यहाँ आंसर लिखूंगा मोल स्क्वायर डीएम -6, ओके। I hope it makes sense to you. Now the next is thermal decomposition of G in the presence of iodine affects the activation energy for the reaction. Table shows activation energy for the thermal decomposition of G with and without iodine. Okay, तो ये without iodine है और ये with iodine है. Okay, and state what effect adding iodine to the reaction mixture has on the value of Kc. मैंने आपको एक बहुत ही कैटेगोरिकली बात बताई हुई है कि Kc is only temperature dependent. ओके, तो अब आप नोट करो, पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब जब मैंने आयोडीन यूज किया तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉप किया, लो किया। दैट मींस कि इन दिस रिएक्शन iodine is acting as a catalyst because catalyst towards the activation energy.
and catalyst has nothing to do with the value of Kc. So हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि iodine is acting as a catalyst because it lowers the activation energy. Value of Kc has no effect on the addition of catalyst. Okay. Next is figure 3.2 shows the Boltzmann distribution of energies of molecule G at constant temperature T. Sketch the Boltzmann distribution energies of molecule G at a high temperature T plus 10 degree Celsius. तो हमने आपको बताया हुआ कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो कर्व मैक्सिमम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड और कर्व जो है वो ड्रॉप हो जाता है. सही है. तो एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. ठीक है. और आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, टी डिग्री सेल्सियस से, राइट. और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, टी प्लस 100 डिग्री सेल्सियस से. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. हमने क्लास में किया है ये डिस्कशन. अलर्ट रहना. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इन जी इन एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स. ओके ओके. H, G and H are structural isomers with molecular formula C4H10O. H and G are straight chain molecules. Okay. यार C4 थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी इस पे. C4H10O है मेरे पास. इसका एक आइसोमर ये बन सकता है, एंड आई थिंक ये मैंने क्लास में करवाया भी है आपको. एक आइसोमर तो ये बन सकता है C4H10O का, ब्यूटेन 1-ol है ना. दूसरा आइसोमर C4H10O का ये बन सकता है CH3CHOH CH2 CH3. ओके. और तीसरा आइसोमर ये बन सकता है CH3 C CH3 CH3OH, राइट. ये भी C4H10O है. ये तीन है आपके पास. ओके. वो कह रहे हैं H and J are straight chain molecules. तो इसका मतलब H और J ये दोनों होंगे. अब इसमें से किसको आप H कर रहे हैं, किसको J कर रहे हैं, that's totally up to you. फिर वो कह रहे हैं चलें यहां तक तो पता चल गया. ठीक है. H और J तो आपको पता चल गया ना कौन से होंगे. उनको लिख लेते हैं अभी हम, लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं. अच्छा सी ये है H, ये है J एंड ऑब्वियसली H एंड J क्योंकि एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गई है, स्ट्रेट चेन हो गई है. ओके. और G जो है वो ये होगा, ये G हो जाएगा. अच्छा अब आगे देखते हैं कि हमने सही लॉजिक लगाई है या नहीं. देखिए वो कह रहे हैं G का बॉइलिंग पॉइंट कम है. इन तीनों में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है. तो मैंने क्लास में कहा था कि जितनी ज्यादा अल्काइल ब्रांचेस होंगी सरफेस एरिया उतना ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा. तो ये प्रूफ हो रही है बात कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. रिमेन्स ऑरेंज, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हुई. तो आप जानते हैं कि ये टर्शियल कोल है, टर्शियल कोल नेवर ऑक्सीडाइज. तो इसका मतलब ये जी का स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल सही डिटरमाइन किया है. एच जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑरेंज टू ग्रीन, जे भी ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑरेंज टू ग्रीन. तो आप जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑरेंज टू ग्रीन की ऑब्जर्वेशन होते हैं. तो इसका मतलब एच और जे भी मैंने डिटरमाइन कर लिया, जी भी मैंने डिटरमाइन कर लिया. वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन बिटवीन जी एंड एच
ओके, G एंड H, ये G और ये H एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, सिर्फ ब्रांचेस अपीयर हो रही हैं, राइट। तो मैं लिखूंगा चेन आइसोमर। फिर वो कह रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शोन बिटवीन H एंड J। तो H और J में क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशनल आइसोमर्स। ओके, ड्रॉ अ पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर H एंड फॉर J, स्टेट द सिस्टमैटिक नेम फॉर ईच स्ट्रक्चर। या J और H में लिख लेता हूं ब्यूटेन 1 CH3 CH2 CH2OH। तो नॉमेनक्लेचर में मैंने इसको नाम दिया था ब्यूटेन 1 और J जो है वो ये है आपके पास CH3 CHOH CH2 एंड देन CH3, इसका नाम था ब्यूटेन 2 ओके ओके। K has the molecular formula C3H6O. K is added to 2,4-DNPH, gives orange PPT. K is warm with tolerance reagent, gives silver mirror. तो एक बात तो तय हो गई यहाँ पर कि यार इस K में ना एल्डिहाइड है, K कंटेन एल्डिहाइड। कितने कार्बन है हमारे पास, 3, तो मैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाऊंगा, 1 2 3। एल्डिहाइड है तो O एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया, और वो मुझसे कह रहे हैं डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाओ, तो मैं सारे के सारे वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करूंगा। लेट्स सी कि हमने ठीक काम किया या नहीं। 1 2 3 कार्बन, कार्बन सेटिस्फाई, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेटिस्फाई, 1 ऑक्सीजन सेटिस्फाई। So that's the end of question number, I believe, 3. Let's move on to the next question, that is question number 4. 2-methyl propene reacts with HCl at room temperature. The major organic product is 2-chloro-2-methyl propane. यार पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 2-methyl propene हमने क्लास में करवाया आपको, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सही। और हम जानते हैं कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, जब बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो इस CH2 के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब HCl का H+ आयन रिएक्शन करेगा और एक्चुअली इस तरह से बना लेगा ये, सही है। मैं अभी मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने कार्बोकैटायन बनाया ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। ओके, दिस इज द पहली पॉसिबिलिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या है हमारे पास, कि हमारे पास CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, जब बॉन्ड कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा तो दिस कार्बन एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज whereas this carbon becomes positively charged. HCl का हाइड्रोजन आयन रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 and this one becomes CH2+। और आप जानते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और आप जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप होता है। ओके, सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसका मतलब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन से बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो आपकी मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगी, और एग्जामिनर उसी प्रोडक्ट का आपसे मैकेनिज्म मांग रहा है, यानी मैकेनिज्म के लिए मैं ये वाला रूट फॉलो करूंगा। सो चले मैकेनिज्म करते हैं। उससे पहले ये स्लाइड पॉजिटिव और ये स्लाइड नेगेटिव, गाइस ये इससे रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम यहां से क्लोराइड निकल जाएगा,
तो ये आपके पास आ जाएगा CH3 CH3, सही है। और ये हो जाएगा CH2 और इसके साथ एक H आकर अटैच कर दिया आपने, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और यहां से आया आपके पास क्लोराइड आइन। अब ये जो क्लोराइड आइन है ये रिएक्शन करेंगे इससे और ये आपको देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सो देखो मैंने क्या क्या चीजें शो करी हैं। मैंने शो किया है चार्जेस, मैंने शो किए हैं डाइपोल्स, मैंने लोन पेयर शो किया है, कर्ली एरोस शो किया है, सारी चीजें शो की हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू विल गेट द मार्क्स इन योर मैकेनिज्म्स, ओके। और मैकेनिज्म कभी भी पेंसिल से नहीं करते, बिकॉज मैकेनिज्म्स जो है वो डायग्राम्स नहीं है आपकी, ऑलराइट। डायग्राम्स नहीं कहते मैकेनिज्म को, ये याद रखिएगा। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि शायद ये डायग्राम्स है, दीज आर नॉट द डायग्राम्स। मेक श्योर कि इन चीजों का ख्याल रखें। इसके बाद जनाब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, explain why this reaction 2-chloro-2-methylpropane is produced at a higher yield than 1-chloro-2-methylpropane। तो रीजन, tertiary carbocation is more stable than primary। तो जाहिर सी बात है टर्शी से बनने वाली प्रोडक्ट जो है उसकी यील्ड हायर होगी। सो हम यहाँ लिखेंगे tertiary carbocation is more stabilized due to the positive inductive effect of 3 electron donating alkyl group, all right। So product, so 2-chloro 2-methyl propane, so product 2-chloro 2-methyl propane has a higher yield than 1-chloro 2-methyl propane, as it has 1 degree carbocation, okay। 2 bottles Q and M each contain a straight chain halogenoalkane with molecular formula C4H9X, or X represents chlorine, bromine, or iodine. A sample from each bottle is added to separate sample of equal amount of aqueous silver nitrate in ethanol. In each reaction, the same organic product T, यानी वो same organic product T कह रहे, and a precipitate are made as shown in figure this। तो M जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा T बना रहा है, Q सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है T बना रहा है, ओके। ऑलराइट ऑलराइट, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द कलर ऑफ ईच ऑफ द प्रेसिपिटेट्स मेड। क्यू वाइट दे रहा है और एम येलो दे रहा है। बेटा याद रखिएगा, जब व्हाइट आता है तो इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड है, जब येलो आता है तो इसका मतलब सिल्वर आयोडाइड है। इसका मतलब क्यू कंटेन क्लोरीन, सो इसका फॉर्मूला बनेगा C4H9Cl, और M कंटेन आयोडीन, तो M का फॉर्मूला बनेगा C4H9I, ओके।
ये याद रखिएगा, Q हो जाएगा C4H9Cl और M हो जाएगा C4H9I। तो आपके पास बेसिकली ये है, ये होगा CH3 CH2 CH2, वेट CH2 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 CH2I, और ये होगा CH3 CH2 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 Cl। ओके ओके। एक और चीज नोट करने की है, क्योंकि मीडियम मेरे पास एक्वस है, इसका मतलब इसमें वाटर होगा, और अगर वाटर होगा तो जाहिर सी बात है इसके पास हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। ये भी एक्वस है तो इसका मतलब यहाँ पर भी वाटर होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, ऐसा ही है ना। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्लोरीन चला जाएगा यहाँ से और OH आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा C4H9OH। तो ये T का स्ट्रक्चर आ गया C4H9OH, यानी ये क्लोरीन चला जाएगा, इसकी जगह पे OH आएगा, ये बन जाएगा। सिमिलरली आयोडीन चला जाएगा, इसकी जगह पे OH आएगा, ये बन जाएगा। और उसने वैसे ही कहा हुआ था कि सेम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगी T, तो C4H9OH बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये हाइड्रोक्साइड कहां से मिलेंगे, वाटर से मिलेंगे, क्योंकि मीडियम एक्वस है हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन टी एंड द नेम and name the type of reaction that occurs using the information this functional group in T is alcohol, और अल्कोहल को हम और क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन, जाहिर सी बात है ये भी अल्काइलाइड है, ये भी अल्काइलाइड है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो हम पूरा लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन ionic equation to describe the formation of the yellow precipitate। याद रखिएगा ये जो येलो प्रेसिपिटेट होते हैं ना, ये AgI के होते हैं। येलो प्रेसिपिटेट किसके होते हैं, AgI के होते हैं। ओके, when M reacts with silver nitrate in ethanol। तो सिल्वर आयोडाइड की अगर मुझे आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो ये हो जाएगा सिल्वर आयंस आयोडाइड आयंस एरो सिल्वर आयोडाइड। ओके, स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे इसलिए मेंशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब व्हिच रिएजेंट Q और M विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट मोर क्विकली। मोर क्विकली का मतलब क्या होगा, रैपिड रिएक्शन हो रहा है, और रैपिड रिएक्शन किसका होगा, जिसका CX बॉन्ड वीकर होगा, और CX बॉन्ड वीकर किसका होता है, अगर मैं आपको बोलूं CCl है, CBr है, CI है, तो ऑब्वियसली वीकर इसका होगा ना, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द वीकर कोवलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू CCl, राइट। तो क्विकेस्ट जो है वो CI वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी M M जो है वो क्विकली ब्रेक होगा क्योंकि उसमें CI बॉन्ड है। ठीक है, तो रिएजेंट M is going to be the most quickest one। तो हम बताएंगे M contain CI bond which has a larger bond length
which is a larger bond length, and this makes the bond weaker. Okay. When pure T is added to alkaline ecosydine, a yellow precipitate and an anion L are made. Identify the anion. Okay. T. T क्या है? T. Okay. Guys, that is something very, very important now, because मैंने आपको यहाँ पर ये लिख के दिया था, ऐसा ही है ना, यानी प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड। यहाँ पर भी क्या लिख के दिया था? प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड। लेकिन जब तो जाहिर सी बात है, ये क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन वो ये कह रहा है यहाँ पर कि जब प्योर टी को तुमने अल्कलाइन एक्वासाइडीन से रिएक्शन करवाया तो येलो प्रेसिपिटेट डाई यानी ऑक्सीडेशन हुई और साथ में एनाइन भी बना। इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगा, इट हैज टू बी सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली ये भी क्या होंगे? सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इनको हम क्या नाम देंगे अब? सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड, यानी ये होंगे CH3 CHI, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। मेक सेंस नाउ? ओके। लेकिन ये काफी आगे जाके उन्होंने बताया है, हमारी एनालिसिस गलत नहीं है। इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी। हमने प्राइमरी लिखा लेकिन आगे चल के हमें पता चला कि वो सेकेंडरी है। सो हमारे पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इट्स जस्ट कि हमें उस पार्ट से पता चला कि भाई एग्जामिनर ने इसको सेकेंडरी लिया हुआ है। ओके, ये हो जाएगा CH3 CH Cl, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। और आपने नोटिस किया मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया आपको, मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया, लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर जानबूझ के नहीं दिया आपको। मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा ही इसीलिए था, स्ट्रक्चर नहीं लिखा मैंने इसका, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि आइदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ आई एम श्योर कि इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, इसलिए मैं स्ट्रक्चर लिख के दूंगा अब आपको। CH3 CH OH CH2 CH3। ओके, पहले मैंने नहीं दिया था स्ट्रक्चर, अब दे दिया आपको स्ट्रक्चर। फाइनली कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये सेकेंडरी अल्कोहल है, एंड दीज आर सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड्स। नाउ एक काम कर लेते हैं, टी का स्ट्रक्चर यहां बना लेते हैं। CH3 CH OH CH2 CH3। ये आप नोट करो, CH3 CHOH एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। CH3 कन्वर्ट होगा CHI3 में, जिसके आपको मिलेंगे येलो प्रेसिपिटेट्स, जो कह भी रहे हैं आपको। एंड ऑब्वियसली ये पूरा का ये क्या होगा, कलर्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको कन्वर्जन समझ में आए। CH3 CH2 विल रिमेन एज इट इज, लेकिन जो CHOH है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। एंड सिंस यू हैव एन अल्कलाइन मीडियम, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी? सॉल्ट, CH2 COO नेगेटिव और COONA। ओके, ये सॉल्ट है जो कि आपका आंसर है, जो डिमांड कर रहा है एग्जाम में। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है एनाइन, इसका मतलब आप यहां पर क्या लिखोगे? CH3 CH2 COO नेगेटिव। ओके, वो कह रहे हैं डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेट चेन हैलोजेनोअल्केन M का स्ट्रक्चर मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH3 CHI CH2 and then CH3। I hope it makes sense to you. That's the fourth question. That's the end of fourth question. Let's move on to the fifth one. Butene reacts with KMNO4 to form organic product Y. Y does not react with sodium carbonate. That means कि इस Y में कोई कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नो COOH ग्रुप। ओके, और आप जानते हैं ये एल्कीन है, इसमें बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। लेकिन जब मैं इसको KMNO4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो ये डायोल बनाएगा, यानी इस कार्बन के साथ एक OH होगा, इस कार्बन के, व्हाट इज दिस बिहेवियर, आई मीन
ये इस कार्बन के साथ भी एक OH बनाएगा और ये इस कार्बन के साथ भी एक OH बनाएगा, डायोल बना लेगा। ओके, सो इट विल गिव यू डायोल बाय द वे। कंफर्मेशन कर लेते हैं। अ गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एक्सेस ऑफ सोडियम इज एडेड टू Y। तो ये आपका Y है, इस Y में आपके पास डायोल है, अल्कोहल है, अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी गैस हो गई? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो सोडियम जब एक्सेस अमाउंट के अंदर यूज करेंगे तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर द KMnO4 यूज्ड इन द रिएक्शन टू फॉर्म Y फ्रॉम ब्यूट टू इन। तो एक एल्कीन को अगर आप डायोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू नीड कोल्ड कंडीशन एंड एसिडिक मीडियम। ओके, और एसिडिक मीडियम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? H+ आयंस। ऑलराइट गाइस, ठीक है। अच्छा, हमने जो क्लास में करवाया है वो आपको ये कहा है कि आप इसको कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन कराओ। तो जब मैंने ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 कहा है क्लास में, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। एक मिनट, ये यहाँ लिखिए, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड मीडियम, तो एसिडिक मीडियम तीनों लिख दीजिए उठा के, सही है। Okay, next is 24 cm3 of gas is produced when an excess of sodium is added to 0.01001 mole of Y when measured under room condition. Deduce the possible structure of Y. Explain your answer. Structure तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ आपको. This is the structure. लेकिन मैं confirmation कर देता हूँ. उसके लिए मैं working करके दिखा देता हूँ. Moles of gas and obviously hydrogen gas हो. सही है, तो हाइड्रोजन गैस कर देते हैं. स्ट्रेट अवे बात कर लेते हैं. ये है 24.0 cm3. इसको डिवाइड कर दीजिए 24,000 से. सो आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 24,000 is going to be 1 into 10 to the power minus 3. Right? In the second step, मेरे पास Y है. Y के मोल्स कितने हैं? 0.001. मेरे पास हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं? 1 into 10 to the power minus 3. इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1:1 का रेशियो आएगा मेरे पास. इसका मतलब 1 mole of Y gives you 1 mole of gas. Oh my goodness, that's the beauty of this part of the question. So मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 mole of Y gives 1 mole of hydrogen gas. और 1 mole of hydrogen gas उसी वक्त आएगी जब इस Y के अंदर आपके पास 2 OH ग्रुप होंगे. कैसे? एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2. दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट? तो अगर ये 2 OH होंगे तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देंगे. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो हम यहाँ लिख देते हैं गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, hence Y contain 2 OH group. Okay, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जनाब आपके पास ये हो जाएगा CH3 CHOH then CHOH and then CH3. ये है था आपका Y. इसको हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं. हाइड्रोजन गैस एक ही बनेगी और यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास CH3 CHONA CHONA एंड देन CH3. कितने Na हो गए? 2. तो यहाँ 2 लगाइए. ठीक है, सो देखो 1 mole of Y gives you 1 mole of hydrogen gas according to this ratio. Okay,
Okay, next is Z contain 3 types of atoms, carbon, hydrogen, and halogen. The mass spectrum of Z is recorded, shows a section of the mass spectrum at m by e greater than 63. The fragment at m by e 64 is the molecular ion peak. इसका मतलब ये molecular ion peak है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये molecular ion peak है, तो ये क्या होगी 1 यूनिट एडिशन के बाद m+1, और ये क्या होगी m+2, क्योंकि 2 यूनिट्स की एडिशन हो गई मॉलिक्यूलर मास में. ठीक है, आई थिंक ये लॉजिक समझ में आई होगी आपको, हमने क्लास में डिस्कस की हुई है. Reduce the number of carbon atoms present in a molecule of Z using figure 5.1. Show your working. Number of carbon atoms अगर मुझे find out करने हो तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ n equals to 100 over 1.1 abundance of molecular ion peak, which is 100, and abundance of m+1 peak, which is 2.2, abundance of molecular ion peak, which is 100. तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी. ठीक है, ये आपको याद है मैंने एक मास स्पेक्ट्रोमीटर के तकरीबन 8 या 9 क्वेश्चंस की वर्कशीट शेयर की थी आपके साथ, तो ये उस वर्कशीट के अंदर ये सारी चीजें करवाई हैं हमने. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे डिड्यूस व्हिच हैलोजन इज प्रेजेंट इन Z यूजिंग फिगर 5.1, एक्सप्लेन योर आंसर. सो हम सब जानते हैं कि m+1 पीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कार्बन 13 की प्रेजेंस की, राइट. लेकिन m+2 पीक और m+4 पीक अगर अवेलेबल हो तो वो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती हैं. तो प्रेजेंस ऑफ m+2 इंडिकेट्स आइदर इट कैन बी क्लोरीन और इट कैन बी ब्रोमीन, बिकॉज उसने हैलोजन तो हमें ऑलरेडी कोट कर दिया था कि अवेलेबल है, राइट. सो पहला पॉइंट तो मैं ये लिखता हूं कि m+2 peak shows that only one halogen is present. है ना. अब भाई कैसे पता चलेगा 2 हैलोजन है, तो मैंने कहा था अगर 2 हैलोजन होंगे तो m+2 के साथ m+4 भी आएगी. सिंस देयर इज नो m+4 इन दिस स्पेक्ट्रम, इसका मतलब इसमें एक ही हैलोजन है. ओके, only one halogen is present. Now the main question is which halogen. तो ऐसा करते हैं हम करते हैं कुछ ऐसा कि मेरे पास 64 के ऊपर मॉलिक्यूलर आयन पीक है, राइट, और मेरे पास 66 के ऊपर m+2 पीक है, राइट. ठीक है, और इसकी अबंडेंस है 100 और 66 की अबंडेंस है 33.3. यानी अगर मैं 33.3 होल्ड ऑन अ सेकंड, 100, ठीक है, कूल. सो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 33.3 से, तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा. सो रेशो क्या बन रहा है 3:1, एंड दिस रेशो shows that 1 chlorine atom is present, because ये रेशो क्लोरीन का है, ये रेशो क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करता है. सही है, यही क्लास में डिस्कशन किया था. shows 1 chlorine is present. ठीक है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम इस बात को अब यहाँ लिख के दे देते हैं आपको. हम यहाँ लिख के देंगे कि रेशो बिटवीन m and m+2 is 100 ratio 33.3, indicate 3:1, hence 1 chlorine is present. Okay, now the next is all peak at 29 and 49. Suggest the formula of these fragments. Deduce the name of Z. Guys, हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं और हमारे पास एक क्लोरीन है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें.
तो ये हमारा Z का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा Z है और इसका नाम होगा क्लोरो इथेन। अब हम कह रहे हैं कि इस क्लोरो इथेन में से मुझे फ्रेगमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स कैसे मिलेंगे भाई? पहला फ्रेगमेंट ये मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा, है ना, इससे ये फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं। देखो पहला फ्रेगमेंट ये मिल सकता है, तो भाई 3 मिल सकते हैं। कैसे? कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाए और आपको CH3+ मिले और इसका मास टू चार्ज रेशियो किसके ऊपर अपियर हो? 15। ये भी तो हो सकता है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाए तो आपको फ्रेगमेंट ये मिलेगा CH3CH2+, और इसका मास टू चार्ज रेशियो हमने क्लास में कितना बताया? 29। सही है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है यार, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाए, यानी ये हो जाए आपके पास CH2Cl+, राइट। तो इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना हो जाएगा? अगर ये क्लोरीन 35 हो तो इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना हो जाएगा? होल्ड 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 35 प्लस 14 is going to be 49. The mass to charge ratio 49 हो जाएगा, right? These are the possible fragmentation of this chloroethane. और ये सारी चीजें मैंने क्लास में समझाई है बहुत डिटेल से आपको, राइट। सो पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि मैंने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फ्रेगमेंट ये आ गया मेरे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने तो फ्रेगमेंट ये आ गया मेरे पास, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो फ्रेगमेंट ये आएगा मेरे पास। ओके, तो मुझसे वो कौन सा पूछ रहे हैं? 29 एंड 49। तो मैं 29 के लिए लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर CH3CH2+, और 49 के लिए लिख देता हूँ मैं CH2Cl, और क्लोरीन यहाँ पर 35 होना चाहिए। इसको शो करोगे। ओके, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 and also the end of the paper. Thank you very much, guys.